ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कूच बिहार हिंसा पर सियासत गर्म है पश्चिम बंगाल में। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से कल हिंसा हुई थी, इससे पहले लगातार ममता बनर्जी का वो बयान सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने केंद्रीय बलों को घेरने की बातचीत कही थी। कूच बिहार के शीतलकुची में ही ये बयान दिया था जहां पर यह पूरी हिंसा हुई है। सीआरपीएफ के खिलाफ यह विवादित बयान था ममता बनर्जी का। सुनिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन এবং public should be allowed to cast their vote. CRPF should not obstruct them, not to allow them or to enter the voter center, voting center. ওরা কিন্তু CRPF is doing the nuisance. I respect the CRPF. Which CRPF? Who are real Jawans. But I don't respect the BJP CRPF who are doing the nuisance, beating the women and killing the people and harassing the people. I don't support them. इस वक्त ममता बनर्जी कुछ बोल भी रही है, सुनते हैं उनको। চাওয়া হয়েছে স্পেশালি এখন তো সবকিছুতেই পারমিশন চাইতে হয়। লোককে মরে গেলে তার পরিবারকে সাহায্য করতে গেলেও পারমিশন চাইতে হয়। তাই ওদের সাথে কথা হয়ে গেছে, ওরা অ্যানাউন্স করবে গভর্নমেন্টের থেকে যেটা পাঁচ করে ওরা একটা দেবার কোনো একটা ব্যাপার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা আপনাদের বলে দেবে। প্লাস আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে যেমন আমার নিজের খুব ফিলিংস হচ্ছে, এটা আমি কোড অফ কন্ডাক্ট ভাঙবো না আশা করি, কারণ আমার তো ভোট অ্যাকাউন্টে একটা টাকা আছে, যে টাকাটার মধ্যে আমি ভোটটা করতে পারি। আমার ভোটের লিমিটেশন, ভোটের সিলিং এর মধ্যে আমার যে টাকাটা বাঁচবে, ভোটের সিলিং এর মধ্যে খরচা করেও আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমার যে টাকাটা বাঁচবে আমি সেই টাকাটাই পরিবারগুলোকে দেবো। এবং যারা গুলি খেয়েছে তাদেরও অনেকে হসপিটালে আছে। কাজেই আপনাদের কাছে আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি। এবং আজকে আমরা যেহেতু ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করছি, আমি নিজেও ব্ল্যাক এটা করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অনেকগুলো আমি বর্তমানেও ক্যান্ডেল র্যালি করব এই ঘটনার প্রতিবাদে। আমাদের ছেলে মেয়েদেরও বলা হয়েছে 2 থেকে 4টে সমস্ত ব্লকে ব্লকে হোম মিনিস্টারের রেজিগনেশন চেয়ে এই বর্বরচিত হত্যাকাণ্ডে, এটা জেনোসাইড, ইটস এ জেনোসাইড। ওয়াই ইটস এ জেনোসাইড? দেখবেন গুলিগুলোকে স্প্রে করেছে। গুলি করতে হলে তুমি নিচে করবে, কোমরের নিচে কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা বুকে লেগেছে। 3টে টেস্ট আমি দেখেছি, যেটা হচ্ছে গুলি হয় গলায় নয় বুকে লেগেছে, জাস্ট স্প্রে করেছে মনে হচ্ছে গুলি। এবং সিআইএসএফ তাদের কাজ কি? তারা জানে না হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব। দ্য প্রবলেম ইজ CISF has no role to play about the controlling mob because they are specially sensitized for the industrial area. But instead of industrial area, they are being deployed because of this control the public, and they are not trained for that. They are not trained for that. Very unfortunate thing. And after that, they want to suppress of that. That's why they said 72 hours you cannot go. Okay, where the election is not there, there I can go. Where the election is already over, why can't I go? What is this system? You will kill the people, and after that I cannot meet the people. I cannot even sympathize to the people. What is this? I'm really sorry for that. এবং আপনাদের ছাড়া কাকে বলবো? কারণ মনে রাখবেন গণতন্ত্রে 3টে জিনিস ম্যাটার করে। একটা ইলেকশন কমিশন গণতন্ত্রকে রক্ষা করে, একটা বিচার। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, ब्लैक डे मना रही हैं आज। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का नाम बदल देना चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट है MCC कर देना चाहिए, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भड़काऊ बयान देने में ममता बनर्जी अकेले नहीं है, उनके एक मंत्री हैं रविंद्रनाथ घोष, उन्होंने भी भड़काऊ बयान दिया था। तौसीफ, मैं शुरू आपसे करता हूं, हालांकि मैं जाना चाहता था ओम प्रकाश जी के पास, लेकिन शुरुआत आपसे करता हूं। आप जो शब्दों की मर्यादा सिखा रहे थे, उन शब्दों की मर्यादा के कुछ नायाब उदाहरण आपको देता हूं कि आपके नेता के पास शब्दों की मर्यादा और जानकारी कितनी है, और उसे आप क्या कहेंगे। 7 अप्रैल को कहती हैं डरना नहीं है, लड़ना है, सुरक्षा बलों का घेराव करना है, चुनाव के बाद मैं देख लूंगी, वोट नहीं दिया तो उठाकर फेंक दिया जाएगा। फिर कहती हैं इंच इंच की खबर रखती हूं, सेंट्रल पुलिस को जाने दो, हम ही रहेंगे यहां पर, उसके बाद क्या होगा, हाथ जोड़ोगे कि सेंट्रल पुलिस को कुछ और दिन छोड़ दो। फिर हावड़ा के डोमजूर में जाती हैं जहां पर कल ही वोटिंग थी, कल ही वोटिंग आई थी, कि गुस्से में उन्होंने अपना आपा खो दिया और यह तक कह दिया कि उन्हें गले में रस्सी बांध कर मारना चाहिए। यह आपको लगता है शब्दों की मर्यादा ठीक है? और उसके बाद आज कहती हैं हम ब्लैक डे मना रहे हैं। एक सेकंड, वो शब्दों की मर्यादा कहाँ गलत है और कहाँ सही है कौन डिसाइड करेगा? आप नहीं डिसाइड कर सकते, पहली बात। सेकंड बात तो ऐसा है कि सेकंड फेज में शायद आपकी आंखें बंद थी या आपके कैमरामैन वहां पर नहीं थे। सेकंड फेज में
सीआरपीएफ को क्या हक है कि वो वोटर को जाने नहीं देंगे अंदर में इलेक्शन वोट देने के लिए? उसकी वीडियो में आपको अगर आप बोलिएगा मैं लाइव शेयर करूंगा। सीआरपीएफ को क्या हक है कि टीएमसी का छोटा सा क्लब को, टीएमसी को छोटे जो बूथ के बाहर वो स्लिप बांटने को जो जगह बनता है उसको तोड़ने का क्या हक है? ये सारे चीजों को देखने के बाद ही सीआरपीएफ की सारी इज्जत की जाती है बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में। और दीदी ने ये बार बार कहा कि मैं सीआरपीएफ की इज्जत करती हूँ, मैं इंडियन आर्मी की इज्जत करती हूँ, इसीलिए कह दिया घेराव कर लो, की तरफ में जो इसीलिए कह दिया घेराव कर लो। आज ब्लैक डे मना, नहीं सुनिए ना, आज इज्जत नहीं करते हम लोग। आज ब्लैक डे मना रही है ममता बनर्जी, आज टीएमसी ब्लैक डे मना रही है ना। अभी ममता बनर्जी ने कहा ब्लैक डे मना रही है, बेइज्जती कर रहे हैं। अरे यूपी और बिहारी तो हम हमारे साथ बड़े हुए हैं भैया, उनकी बेइज्जती हम क्या करेंगे? अभी आपने कहा तौसीफ, अभी आपने कहा था यूपी बिहार वाले कौन होते हैं? बंगाली। अरे सुनिए, बंगाली मानुष की भावना को क्या समझेंगे? इस पर ब्लैक डे नहीं मनाएंगे आप? अरे यूपी बिहारियों के साथ तो बड़े हुए भैया, मगर गेरुआ गुंडा जो गेरुआ पकड़ के एक पाक रंग को पहनकर जो गुंडामू करता है यूपी में बैठ के, हम उसके खिलाफ। नहीं तो आज जो काला कपड़ा पहनकर, जो आतंकवादी बात करता है, जो काला कपड़ा पहनकर ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, करेंगे। अरे सुनिए ना होने देंगे भैया, जो आज काला कपड़ा, बंगाल में काला कपड़ा आज शहीद दिवस बनेगा। एक शहीद दिवस था 21 जुलाई और अब से बनेगा शहीद दिवस, वो है 10। ठीक है, आप सुनने को तैयार नहीं है ना? शहीद दिवस ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। ओम प्रकाश जी, कितने लोगों की और जान जाएगी अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में? देखिए, जिनकी भी जान गई है उसके लिए बहुत दुख है। किसी की भी हत्या, किसी की भी मृत्यु का कारण हो तो उसका दुख है। कौन है कैसे हुआ, इस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को संवेदना है, लेकिन ये पार्टी का कहना है और इसका प्रमाण है, साक्ष्य है, ये सारा ममता बनर्जी का किया धरा है। एक रैली में एक मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान, जिनकी बातों को जनता अन्य रूप में लेती है, मानती है, उनके समर्थक एक तरफ बोल रही है करछुल छोलनी लाओ, घर के सारे हमला कर दो महिलाओं को, एक जगह बोल रही है सीआरपीएफ पर हमला कर दो, रोक दो। तो ये सरासर उनका किया धरा है। वो ब्लैक डे मनाए या ऑरेंज डे मनाए, इससे कुछ आना जाना नहीं है। 2 मई के बाद वैसे भी उनको ब्लैक डे मनाना है। और बोलता हूँ, ये तौसीफ साहब हैं, तृणमूल के किसी के नेता के बाप की जागीर नहीं है पश्चिम बंगाल। हम लोग भी यहीं जन्म लिए, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं। हम बाहरी हो जाते हैं और रोहिंग्या भीतरी हो जाते हैं। ये हम रोहिंग्या भीतरी हो जाते हैं। ममता बनर्जी नहीं, मानवीय आधार पर शेल्टर दिया जाएगा, हम बाहरी हैं। आप लोग जैसे तड़ीपार को एहसास नहीं हो सकता। आपका क्या चला जाएगा? 5 लोग क्या 50 लोग कोरोना में मर गए थे। अरे आप लोग घर नहीं ला सके थे अपने आदमियों को, आपको क्या एहसास होगा? 50 मरे, 5000 मरे, बिहार के लोग आपको क्या एहसास होगा? आपको एहसास नहीं होने वाला। ओम प्रकाश जी, तौसीफ एक मिनट, एक तो ओम प्रकाश जी, किसी समाज को उंगली एक मिनट रुकिए ना प्लीज, मिलेगा प्लीज एक मिनट। 5 लोगों की जान तुमने ली है, जवाब दोगे? तौसीफ एक मिनट, ओम प्रकाश जी एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर एक बार सबकी आवाज डाउन करिए। ओम प्रकाश जी, एक तो तुम तरह की भाषा नहीं चलेगी, चैनल पर है, नेशनल चैनल पर है, इसलिए थोड़ा सम्मानजनक बातों का आप इस्तेमाल करिए, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैं शब्दों की मर्यादा की बातचीत करता हूं तो सबके लिए करता हूं। दूसरी बात, टीएमसी के लोगों की भी हत्याएं हुई हैं, उनके मंत्री पर भी बम से हमला हुआ है, वो भी ब्लैक डे मनाए, तो ब्लैक डे मनाने में दिक्कत क्या है? नहीं, मैं सुनिए मेरी बात। आप तो पहले मुझे, मैं जितना देर बोला सभी लोग बोल रहे, मैं चुपचाप बैठा हूँ। एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता को आप चुपचाप बैठा कर रखे हैं, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा। नहीं तो आपके लिए 1 घंटे खोल दिया जाए क्या चैनल? नहीं, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ सुनिए ना भाई, सुन लीजिए ना। वो बिहार यूपी के लोगों को बाहर ही बोलेंगे, हम यही जन्म लिए हावड़ा में, और मैं चुपचाप सुनूंगा। और मेरे नेता को बंदर बोलेंगे, वो गेरुआ वाला बंदर है, आतंकवादी है, और हम सुन लूंगा। इनके नेता बोलते हैं 4 पाकिस्तान बनाए, मैं सुन लूंगा। यूपी बिहार को बाहर नहीं बोलता है, आप जैसे लोगों को बाहर बोलता है। तरीका से बात करिएगा, तरीका से कोई यूपी बिहारी को बाहर नहीं बोलता है। अमित शाह को बाहर बोला जाता है, मोदी को बाहर बोला जाता है। क्यों अमित शाह को बाहर बोला जाता है? इस देश में नहीं है, आपको नहीं बोला जाता। इस देश के नहीं है। आप बंगाल के बाहर नहीं जाते हो क्या? अमित शाह यहाँ है तो बाहर ही हो गए। मत होइए, तड़पिए मत, गुस्सा मत होइए। बंगाल के बाहर नहीं जाते हो, तर्क से बात करिए, तरीके से बात हो जाइए। मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह से गेरुआ बांधता, बंदर है। जबान संभाल के बात करिए, आदर देने से आदर मिलता है।
आपने गेरुआ वाला पीछे बाहर सुना से आ नहीं है, रहा है। आप वापस से टेलीकास्ट कर लीजिए। चलिए तरीका ठीक है, आपसे ज्यादा अवधेश जी, सुना नहीं एक है। मिनट ओम तरीका प्रकाश जी, गलत है। अब आप लोग आपसी लड़ाई बंद करिए। वापस से। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अवधेश जी आप आइए। एक मिनट अवधेश जी, कौन किसका सम्मान कर रहा है यहाँ पर? आज ममता बनर्जी ब्लैक डे मना रही हैं, लेकिन कह रही हैं एमसीसी नाम रख दिया जाए, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख दिया जाए। इसके पहले वो चुनावी रैली में कहती हैं कि पीएम मोदी के गले में रस्सी बांध कर मारो। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि इतने पत्रकारिता की इतनी लंबी अवधि में हमने चुनाव आयोग पर दलों के द्वारा अनेक हमले सुने हैं, उनकी आलोचना हुई है, लेकिन जिस ढंग से ममता बनर्जी संवैधानिक संस्था को बिल्कुल एक वैसे बता रही है जैसे हमारे दुश्मन की तरह काम कर रहा है, और उस भाषा के पीछे भाव रहता है अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का कि चुनाव आयोग हमारे खिलाफ है, केंद्रीय सैन्य पुलिस बल हमारे खिलाफ है, अमित शाह और मोदी, चलो अमित शाह और मोदी तो राजनीतिक हमला वो समझ में आता है, लेकिन जो केंद्रीय बल माओवादियों से लड़ने में उन्हीं ममता बनर्जी की प्यारे थे जो लड़ करके और शांत किया है। ठीक, एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ कैंडल मार्च निकालेंगे ममता बनर्जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काला कोट पहनकर आई, आप कह रही हैं कि एक सत्तारूढ़ पार्टी को कम से कम समय, आप चुनाव कोई जीतेगा हारेगा, लोकतंत्र को जीवित रहना है, एक संवैधानिक संस्था को आप अपने समर्थकों के अंदर इस ढंग से मटिया मेट मान मर्दन करने पर तुले हैं, और पूरा वातावरण ऐसा बना दिया है जैसे एक चुनाव नहीं हो, एक हिंसक युद्ध हो। उसमें क्या परिणाम आएगा देखिए, 2018 के पंचायत चुनाव में इसी तेवर में पता नहीं कितने लोग। अवधेश जी एक सवाल, एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं तौसीफ का रुख करूंगा। ठीक है, ब्रेक। एक लाइन सुनो ना, पंचायत चुनाव में 2018 में बिना लड़े 20,000 सीट जो है ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई, कोई नॉमिनेशन डालने नहीं आया। तो ये जो स्थिति उनकी थी वही स्थिति कायम करने की रणनीति है, और ये आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक नागरिक के नाते हम सबको डराने वाला है। और वो स्थिति अवधेश जी नहीं हो पाई, इलेक्शन कमीशन ने सख्ती बरत दी, इसलिए आज ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ब्लैक डे मना रही हूं। ये भी देश के चुनावी इतिहास में पहली बार हो रहा है। सीधे तौसीफ आपके पास आता हूं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ब्लैक डे जो देश के चुनावी इतिहास में पहली बार हो रहा है, जमीन खिसकने का डर, या फिर लग रहा है चुनावी समर हार रहे हैं इसलिए इलेक्शन कमीशन को खुद को विक्टिम बनाकर पेश कर दिया जाए? आज ये ब्लैक डे का जो फैसला लिया गया है मोदी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, ये बिल्कुल बहुत सही है, और मैं काफी शान से कहना चाहता हूँ कि हम सब इसके साथ में रहेंगे। मगर जाते जाते मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने सारे पैनलिस्ट को बोलना चाहता हूँ कि ये डिवाइड एंड रूल का खेल आप लोग जितना करना चाहते कर लीजिए, मगर एक बात बता देता हूँ कि बंगाल में यूपी, बिहारी और बंगालियों को इसकी अगर हिम्मत है, अगर तोड़ के दिखा दे, तो मैं आपके सामने यहीं पे 100 बार उठा बैठी कर लूंगा। अरे तौसीफ खान, इसी एक घंटे की जितना डिवाइड एंड रूल, तौसीफ रहमान भाई सुनिए ना, तौसीफ भाई सुनिए, चाहते हैं तौसीफ भाई चूंकि आखिरी सेगमेंट है, मुझे सबसे टिप्पणी लेनी है। तौसीफ रहमान भाई, अरे तौसीफ भाई सुन लीजिए, ठीक है लड़ाई हो गई, सुन लीजिए ना तौसीफ भाई इसी आखिरी, सुनिए, सबके मुंह पे जूता लगे। इस एक घंटे की डिबेट को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अरे सुनिए ना तौसीफ भाई, इस डिबेट को एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा। इसी डिबेट की शुरुआत में आप कहते हैं यूपी बिहार के लोग क्या सेंटीमेंट समझेंगे बंगाली भाषा, बंगाल के लोगों की। मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। दिल्ली वाले बाबू जो आते हैं कलकत्ता, उनके बारे में एक बार फिर, नहीं वो आपने क्या कहा, हैं यूपी बिहारी, उनके बारे में वो आपने क्या कहा एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, वो एक बार आप सुन लीजिएगा। चलिए ओम प्रकाश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, ये चुनावी समर की मजबूरी हो गई है क्या जो इतनी हिंसा हो रही है, और जो आरोप लगा ममता बनर्जी का उस पर? देखिए, ये 2011 में ममता बनर्जी ने कहा था सीपीएम और पुलिस का नेक्सस इतना है कि 12 दफे में चुनाव हो, केंद्रीय बाहिनी बुलाई जाए, और केंद्रीय बाहिनी आई और दीदी को सत्ता मिली। ये केंद्रीय बाहिनी थी, एक चुनाव आयोग था। ठीक, आज उनके पैरों तले जमीन नहीं है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। ठीक है, और देखिए 2 मई को इनकी पराजय सुनिश्चित है। ठीक है, चुनाव आयोग, ठीक है, ये आपका टेक है। मुझे एक टिप्पणी अवधेश जी से भी लेना है, मैं आपको रोक रहा हूं। अवधेश जी, 8 चरणों में चुनाव आयोग ने फैसला लिया चुनाव कराने का, तब तो लोग सिर पीटने लगे, छाती पीटने लगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको लगता नहीं कि 18 चरणों में चुनाव हो जाना चाहिए था? और एक तमिलनाडु है जहां पर 234 सीट है, एक चरण में चुनाव हो जाता है, कुछ नहीं होता है। नहीं, यही तो उदाहरण लेने की जरूरत है। बगल में हम लोग तौसीफ कहेंगे देखो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, असम में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस और एआईडीएफ के गठबंधन ने कुछ क्षेत्रों में कड़ी चुनौती दी है, लेकिन क्या सत्ता का उपयोग करके वहां हमले हो रहे हैं, मारकाट हो रहा है और हमसे चुनाव संपन्न हो गया?
चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल की जो रिपोर्टें मिली थी 2019 में जो हिंसा हुई, 2018 पंचायत चुनाव में हुआ, 2016 में हुआ और लगातार एनसीआरबी के आंकड़े थे, उन सबको ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने एक बेहतर निर्णय लिया था। हालांकि मैं स्वयं इस पक्ष में रहता हूं कि मतदान जल्दी कराया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल को पहले कांग्रेस ने, बाद में वाम दलों ने और फिर उन्हीं से लड़ करके और हिंसा का शिकार होकर आई ममता बनर्जी ने जिस ढंग से पूरे प्रदेश को हिंसक बनाया है, राजनीतिक हिंसा का प्रतिरूप बना दिया है, उसमें यही एकमात्र चुनाव आयोग के पास चारा था। आज तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग की जितनी आलोचना करे, लेकिन इतिहास में चुनाव आयोग की प्रशंसा होगी कि जब लोकतंत्र का दमन हो रहा था, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ गालियां सहते हुए, आरोप सहते हुए साहस और दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। ठीक है। और एक लाइन कर रहा हूं, तौसीफ जिस बूथ की बात कर रहे हैं, उस बूथ को चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक भेज करके वहां की रिपोर्ट मंगा ली कि कोई सीआरपीएफ का जवान किसी को मतदान करने से नहीं रोक रहा था। ठीक है, वक्त इतना ही है अवधेश जी, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक अपील सभी राजनीतिक दलों से, ये भी चुनाव है, इससे युद्ध मत बनाइए। जनता सब देख रही है, समझ रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।